Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, आज finally 1 month plus के बाद I'm again doing the life purpose readings on your request. And sorry for the delays and I was quite busy with other um projects and today we are going to know the purpose. जो भी लोग रह गए थे जिनकी अभी तक रीडिंग्स नहीं हुई थी, आज उनको इंक्लूड किया है मैंने अपनी लिस्ट में। एंड आई होप कि जैसे ही आपको अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा, जल्दी से जल्दी आप एनालाइज करेंगे आपको क्या करना है और आप इससे रिलेटेड स्टेप्स लेंगे सो दैट जल्दी से जल्दी आप अपने वर्क को इनिशिएट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, अपना पर्पस जो है उसको अकम्प्लिश कर सकें, अपनी जो जर्नी है उसको सक्सेसफुल बना सकें, राइट? So let's start with Miss Savi. So just getting drawn. Here is Savi. I have taken three cards because ये दोनों cards तो इसमें आए and plus I was getting drawn towards this card. One second. So Savi, you have got three cards. One is lawyer, second is stylist, and third is speaker. So your first card says, see, this is the card of lawyer and it's based on the aspect of justice. So this card says, do you have a tendency to want to offer advice or mediate on others' behalf? Be willing to negotiate to arrive at a fair outcome when disagreements arise. Diplomacy is required at this time and always keep your own counsel and be clear and calm. Right? And your second card says, this is a card of a speaker and it's based on the facet of communication. It says, one second. Let me remove this because every time I face problem. So your second card says, when you speak, do people listen? Speak your truth and share your wisdom and knowledge. Use your life experiences to bring a message to the forefront. Tell stories to demonstrate who you are and passionately illustrate your points. It's time to speak the truth. And your third card is stylist, which is based on the concept of art. And it says, do you have a knack for making yourself or others aesthetically pleasing? People are your canvas. Please bring pleasure by exploring unique paths to find bring forth beauty, accentuate the positive with creative avenues to help others. Let their inner light and love shine through in their choice of styles, fashion choices, hairstyles, and makeup, etc. So, together, these cards speak. Sabi, you have to work for the people who are not much aware.
जिनकी अवेयरनेस नहीं है, जिनको लाइफ में ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले हैं कभी, एंड अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट जैसे कि कुछ गर्ल्स होती हैं जो कि घर घर में ही उनकी लाइफ बीत जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं आइडिया लगता, ठीक है। इट्स जस्ट दैट दे ग्रो अप, थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता अपने घर के बाहर का। सो दे डोंट नो टू कैरी देमसेल्व्स, एंड अगर खुद को थोड़ा बहुत कैरी करना जानते भी हैं तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। अपना घरेलू लाइफ का उनको थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन अपने घर से बाहर निकलने के बाद उनको दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है बेसिकली। सो it's your work to groom them a bit, to make them aware of the things, to help them um, to gain knowledge about how to handle things. उनको जिस एक लिमिटेड डायमेंशन में वो रह रहे हैं उसके बाहर का भी जो नॉलेज है वो आपको उनको देना है, सो दैट they will be able to handle their situations in a better way in future, or they'll be able to groom themselves a bit better. और ग्रूमिंग से सिर्फ ये स्टाइलिस्ट का डजंट मीन कि उनका हेयर स्टाइल की बात है या इस तरह की ग्रूमिंग की बात है। इट कैन बी लाइक पर्सोना ग्रूमिंग एज वेल, ठीक है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उनकी होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको इतनी नॉलेज हो। जब किसी को नॉलेज नहीं होती ऑटोमेटिकली उसका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकती है, राइट। सो यू हैव टू मेक देम अवेयर and help them to gain knowledge about how to handle things and situations in a better manner. And yes, the lawyer card says कि अगर आपको लगता है कि इन लोगों के साथ कहीं कुछ गलत है, तो ये किसी भी तबके के लोग हो सकते हैं, वेरी लो क्लास एज वेल एंड मिडिल क्लास एज वेल एंड वेरी हाई क्लास एज वेल। जहाँ पे गर्ल्स को थोड़ा सा कंजर्वेटिव या रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, ये वो लोग भी हो सकते हैं। मिडिल क्लास गर्ल्स भी हो सकती हैं जिनको नहीं पता होता, उनका लाइफस्टाइल उनके दिमाग में यही होता है कि बचपन से कि बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। उसके अलावा दे डोंट नो उनको किसी के लिए कुछ करना भी है लाइफ में या अपने लिए ही कुछ करना है, दे डोंट नो। तो लॉयर कैन बी योर प्रोफेशन ऑलरेडी, मे बी आप लॉयर हो या एडवोकेट हो या स्पीकर हो या स्टाइलिस्ट हो, मे बी इन तीनों में से कोई एक आपका प्रोफेशन भी हो। बट अगर आप इन प्रोफेशंस में हो, इनमें से किसी एक में या नहीं भी हो, तो भी ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दोज हु आर अनअवेयर सॉर्ट ऑफ पीपल, इनके साथ अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो यू कैन गाइड देम। आप उनके बिहाफ पे लड़ सकते हो, उनको नॉलेज दे सकते हो, उनको विजडम दे सकते हो, उनको लॉस बता सकते हो कि अगर उनके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, वो परेशान है, तो आप उनकी बिहाफ पे आप लड़ सकते हो। अगर आप लॉयर हो ऑलरेडी तो आपके लिए ईजी है कि आप उनके बिहाफ पे लड़ो, उनको जस्टिस दिलाओ या उनको इतना एजुकेट करो कि वो अपने लिए जस्टिस की मांग कर सकें, ठीक है। एंड यू कैन सपोर्ट देम इन दिस। अगर आप लॉयर नहीं भी हैं तो भी आप किसी चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से एनी हाउ आप घर की मेड से शुरू करके या मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों से शुरू करके इतना कुछ होता है, हर किसी की लाइफ में एक अलग स्टोरी होती है। यू कैन हेल्प देम आउट, यू कैन टेल देम कि कहाँ वो गलत है, कहाँ वो अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, कहाँ वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कहाँ उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर दैट। और होता क्या है कि दे आर सराउंडेड बाय डिजीजेस देन, या फिर दे सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड लाइफ एंड्स ग्रेजुअली। तो यू हैव टू गाइड देम, ठीक है। उनके बिहाफ पे आप लड़ सकते हो उनके लिए, और या फिर उनको सपोर्ट कर सकते हो उनकी लड़ाई लड़ने में। एंड येस एग्जैक्टली व्हाट आई सेड just now कि you can start your own channel or you can take help of some media and you can be a speaker, या फिर maybe you are already a speaker। तो इन लोगों के जो बात हो रही थी, इनको इंसाफ दिलाने के लिए you have to raise your voice, ठीक है।
आपको सच का साथ देना है, विजडम लोगों को देना है, नॉलेज देनी है। जो भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी आपकी केस स्टडीज़ होती हैं, इन लोगों को हेल्प करते टाइम यू हैव टू शेयर दी स्टोरीज़, लोगों को डेमॉन्स्ट्रेट करके बताइए, अपनी स्पीचेस में बताइए, किसी भी ज़रिए से लोगों को ये चीज़ें बताइए कि कहाँ पे घर की लेडीज़ ही नहीं, बाकी जो हेल्पलेस नीडी पीपल भी होते हैं या घर के बुजुर्ग भी होते हैं या कोई भी अनअवेयर पीपल, ठीक है, इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग बेसिकली। जहाँ भी आपको लगता है कि अनअवेयर हैं लोग, जैसे कि किसी भी प्रोफेशन के लोग हो सकते हैं जिनके साथ कुछ गलत होता है, या दे डोंट नो कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, बेसिकली दे आर नॉट प्रॉपरली गिवन सैलरीज या दे आर नॉट गिवन देयर राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी आप उनको बता सकते हो। एंड दिस कैन बी अबाउट एनिमल्स एज वेल, ठीक है। If you find something wrong happening with animals as well, or birds or something like that, you can also help them receive the justice, right? और स्पीकर कार्ड जो आपका कहता है वो लाइक इट्स द टाइम टू स्पीक द ट्रुथ। लोग बहुत अनअवेयरनेस में, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, और अगर पता भी चलता है तो इट्स लाइक कि अब क्या कर सकते हैं हम, एंड अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस वाली मेंटलिटी से निकालना है और उनकी स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करनी है, उनके हक में लड़ाई करनी है, उनको सपोर्ट करना है, और मीडिया के ज़रिए या एनी हाउ एक स्पीकर बन के ये जो स्टोरीज़ हैं सोसाइटी में पूरी ह्यूमैनिटी को पहुंचानी है, सो दैट लोगों को पता लगे कि क्या क्या गलत होता है लोगों के साथ। एंड इफ़ दे विल रेजोनेट टू द स्टोरीज, दे विल ऑल्सो बिकम मच मोर कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द थिंग्स। और सोसाइटी में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा जिसमें पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके जो अपने हक हैं उसको मांगने में कोई बुराई नहीं है, और लाइक अवेयर होना गलत नहीं है। अगर कहीं पर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ उसके लिए ऑब्जेक्शन करने में कोई बुराई नहीं है, उसके लिए वॉइस रेज करने में ही अच्छाई है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर है दुनिया में, और जस्टिस जो है उनको डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा, बशर्ते वो उसके लिए लड़े तो सही, ठीक है। सो यू हैव टू प्रोवाइड देम द सपोर्ट। और ये स्टोरीज़ जो हैं, अपनी केस स्टडीज़ ये लोगों तक पहुंचाइए, उनको अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे पॉइंट्स भी बताइए। जब आप ऐसे हेल्पलेस लोगों के साथ डील करेंगे, तो आप जब उनकी हेल्प करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास, बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी उनको देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। सो यू कैन गाइड others as well with your guidelines, with your experiences, so that they will also get aware and conscious. एंड फर्दर ये जो कॉन्शियसनेस है ये और आगे स्प्रेड होती जाएगी, जैसे जैसे आप अपना काम करते जाओगे वैसे वैसे ये जो कॉन्शियसनेस है ये अपना रोल प्ले करती जाएगी, यूनिवर्स अपना रोल प्ले करता जाएगा, और एनर्जी ये वाली जो है जस्टिस की एनर्जी ये स्प्रेड होती जाएगी। यू जस्ट नीड टू स्टाइलिश डजंट मीन कि आपको इनको स्टाइल करना है, यू कैन हेल्प देम ग्रूम personality wise or awareness wise, and you have to be their lawyer, you have to support them or fight for them, and you have to convey their stories and convey your experiences, convey the guidelines you achieve through your case studies when you help such people. And this is your life purpose, Miss Savi. Thank you so much. Second reading is for Miss Shalini Sharma.
So, Miss Shalini Sharma, you have got the two cards. So, these are the cards. The first card is the card of accountant based on the facet of finance, and second card is being the first responder, which is based on the aspect of protection. So your card says, are you a numbers person? Take a look at your assets and liabilities and find balance in the way money flows in and out of your life. Maintain mental equity and focus when you work with numbers. Attention to detail is important today and always. And your second card says, are you often the first person to respond and take action? When an emergency arises, deal with any situation in a calm and confident manner. Preparedness is the key. Maintain a fit and healthy body to ensure optimal performance and endurance when the need arises. Right? So, together, your cards say, Shalini, I'm getting an energy of numerology from these cards. All the card is about accountant or it can represent okay, you already may be an accountant, right? But I'm getting more energy of a numerologist या न्यूमरोलॉजी आपको परस्यू करनी चाहिए. So your card says कि शालिनी अगर आप अकाउंट्स की लाइन में हैं, इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट या अकाउंट्स बेस्ड आप प्रोफेशन में हैं, तो यू हैव टू सी यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड मनी फ्लो लोगों के आगे इंट्रोड्यूस हो सके. यू कैन गिव देम द टिप्स एंड स्पेशली फॉर uneducated or helpless or needy people, you have to give them these tips if they come to you, or anyhow you can start a channel and you can start spreading this information to them so that लोगों को पता लगे कि क्या सही क्या गलत होता है, बेस्ट वे क्या होता है अपने फाइनेंस मैनेजमेंट का. बट बियॉन्ड दिस न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा मैं सुन पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं न्यूमरोलॉजी की ही कैच कर रही हूँ इस कार्ड में. सो if you're not into accounts, or if you are into accounts, anyhow you can pursue numerology. If you feel कि you're a numbers person, you can pursue numerology या फिर maybe आपने numerology की हो, and that way you have to help people with the help of numerology. आप उनको गाइड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है. इट कैन बी और प्रोफेशन एज वेल. अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो ऑलरेडी तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हो जिससे उन्हें ज़्यादा हेल्प मिले आपके प्रोफेशन से. और जो भी हेल्पलेस लोग हैं स्पेशली, इफ़ दे कम टू यू तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हेल्प कर सकते हो या उन्हें डिस्काउंटेड वे में हेल्प कर सकते हो. आप डिस्काउंट दे के उन्हें हेल्प कर सकते हो. एंड येस यू कैन ऑल्सो हेल्प देम बाय टीचिंग देम न्यूमरोलॉजी. ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप उस प्रोफेशन को अगर परस्यू कर रहे हो, आपकी जो अर्निंग आएंगी उनसे भी आप हेल्प कर सकते हो हेल्पलेस लोगों को, नीडी लोगों को.
और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पे कर सकते हैं आपको, बट दे आर इन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, न्यूमरोलॉजी के रूप में आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट टेकिंग चार्जेस फ्रॉम देम। और प्लस आप ये जो एजुकेशन है, जो न्यूमरोलॉजी है, वो आगे भी कुछ हेल्पलेस या नीडी लोगों को सिखा सकते हो, राइट? सो दैट वो इस एजुकेशन को, इस विज़डम को और आगे बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ अबाउट न्यूमरोलॉजी बेसिकली, ठीक है? सो यू कैन हेल्प द पीपल विद फाइनेंस। एंड योर सेकंड कार्ड इज़ अबाउट बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, या आप बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट या बीइंग एन अकाउंटेंट, आप देखते हो लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, या लोग किसी अनअवेयरनेस में हैं, किसी गलतफ़हमी में चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता अपने राइट्स के बारे में, या किसी भी चीज़ में किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है, इफ़ इट्स इन योर रीच, यू हैव टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आपको वेट नहीं करना है कि ये अपने आप हैंडल कर लेंगे, या मैं क्यों बीच में पढ़ूँ, या कोई इनकी हेल्प कर देगा एंड ऑल। यू हैव टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू कैन गाइड देम, जहाँ भी जिसके साथ गलत हो रहा है यू कैन सपोर्ट देम। और ये बेशक किसी के साथ भी, बीट एनिमल्स, बीट एनी बर्ड्स, बीट ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फौना होता है, पेड़ पौधे होते हैं, किसी भी रीजन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है, यू हैव टू बी काम एंड कॉन्फिडेंट, और आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स देना है वहाँ पर। आपको सबसे पहले अपनी जो हेल्प है, या अपनी जो सपोर्ट है वो ऑफ़र करनी है उन लोगों को जिनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, दोज़ हू आर हेल्पलेस, दोज़ हू आर needy, those who are unaware. So you have to be the first responder in that case. इसके अलावा भी कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, wherever you can help the people, in those situations also आपको लोगों की हेल्प करनी है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऐसा नहीं होता कि हम नींद से उठे और अचानक से कुछ हुआ और हम रिस्पॉन्ड करने पहुंच गए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत होती है। प्रिपेयर्डनेस इज़ द की हेयर। So you have to mentally, physically, emotionally prepared, right? In each facet, you have to be prepared first of all, and then you will be able to do this. Or, of course, your card says maintain a fit and healthy body to ensure optimal performance and endurance when the need arises. Because फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप किसी भी सिचुएशन में जब किसी को हेल्प करने जा रहे हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। अदरवाइज हेल्प आप उनकी जितनी नहीं करोगे, उससे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत आपको खुद को पड़ जाएगी। सो मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी फिजिकल बॉडी, maintain a stable mental state, and be in strength emotions wise, right? So these things will help you out, these things will help you get prepared. And you can also learn self defense techniques. Maybe you already are into it, but if you are not, then learn the self defense techniques. First of all, जब आप खुद मजबूत होगे तभी आप किसी को मजबूती दे पाओगे, किसी को हेल्प कर पाओगे, right? So these are your cards. Your first card is about helping people with the finance, and second card is about um, being the first responder. So इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक फिजिकली आपको किसी के लिए फाइट करना है या कुछ भी है। अगर इन केस ऑफ एनिमल्स यू सी सम एनिमल्स इन प्रॉब्लम, इन क्राइसिस, डेफिनेटली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी हेल्प करेगी। बट एवरीवेयर यू कांट गो एंड लाइक किक समवन,
स्पेशली अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इन दैट केस जैसे ही आपको इट्स लाइक अगर बीइंग एन अकाउंटेंट आपको लगता है कि किसी को कुछ फाइनेंशियली कोई इश्यूज हैं या अनअवेयरनेस में लोग रह रहे हैं, उनको नहीं पता है, यू कैन इंट्रोड्यूस वेरियस मेथड्स टू देम जिससे वो अपना फाइनेंस जो है वो बेटर वे में लाइक मैनेज कर सके। और इन केस यू फील कि उनके संग कुछ गलत हो रहा है फाइनेंशियली भी, तो यू कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड हेल्प देम विद by providing them the knowledge about finance। ठीक है, तो यू कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन दैट वे एज वेल। ठीक है, और अगर आप लाइक एज आई फेल्ट द एनर्जी, इफ यू आर ऑलरेडी अ न्यूमरोलॉजिस्ट या आप परस्यू करते हो न्यूमरोलॉजी, इन दैट केस एज वेल अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है किसी रीज़न से, उनको उसके बारे में गाइड कीजिए और उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, सो दैट उनकी लाइफ में कहीं भी कुछ गलत चल रहा है या आगे कुछ गलत आने वाला है तो यू कैन हेल्प देम आउट, यू कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आप उनको गाइड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, आप वेट मत करते रहिए कि कोई आएगा कुछ करेगा देन आई विल सी। यू कैन बी द फर्स्ट टू इनिशिएट, राइट? तो आप उनको लाइक न्यूमरोलॉजिकली यू कैन गिव देम द एडवाइजेस, आप उनको हेल्प कर सकते हो। प्लस जो भी आप उनको गाइडलाइंस दोगे या सॉल्यूशंस दोगे, उस सॉल्यूशन को परस्यू करने में भी आप उनको हेल्प कर सकते हो, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एबल टू परस्यू द solutions we provide to them sometimes, like out of hesitation or out of any crisis, any issues. In that case you can be the first responder and help them with it, right? So these are your cards, and this is your life purpose, Miss Shalini Sharma. Thank you so much. Another reading is for Miss Sharmila. I don't know why today I'm getting drawn towards red color again and again. There must be something here. Sharmila, you have got two cards. One card is the Judge card, which is based on the facet of justice, and second card is about being a spiritual teacher, and this is based on the aspect of education, right? So let's see what your cards say. So your first card says, are you impartial and maintain strong ethics and high moral values in all life situations? Honesty and integrity are of utmost importance. Truthful communication is imperative. Speak the truth, know the truth, and live in the truth. Okay, this is the Justice card, and your second card says, are you aware of your empathetic connection with others? It is time to recognize your ability to discern your own thoughts and feelings from those outside of you. Develop your intuitive abilities and use them to assist others as they deal with life's issues. Be aware of being aware. Very important. So, let me see once what your cards together say. So, Sharmila, you can be in some profession related to the judge or related to justice.
right? Or you can be a spiritual teacher or in a profession of एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट. बट अगर आप नहीं भी हैं, बिकॉज जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं दे डोंट नीड सर्टिफिकेशन ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स, राइट? दीज आर आर नेचुरल गिफ्ट्स. ठीक है, तो टुगेदर योर कार्ड से कि यू हैव टू सी कि लाइफ सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एथिक्स जो हैं या हाई मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं. ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके आपको चलना है. ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना है. यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ एंड नो द ट्रूथ एज वेल. ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आपने उस चीज़ को मान लिया. आपको सच्चाई में रहना है और आपको सच ही बोलना है और लोगों को भी सिखाना है कि सच कैसे बोलना है. अलग अलग सिचुएशंस में आप देखोगे सही गलत क्या है, जस्टिस इनजस्टिस क्या हो रहा है लोगों के साथ, सच झूठ का क्या डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे हो रहा है, इज इट अ हेल्दी डिस्क्रिमिनेशन और अ अनहेल्दी डिस्क्रिमिनेशन. किस तरह से लाइफ सिचुएशंस में हाई मॉरल वैल्यूज़ को चुन के चला जा सकता है जहाँ पे लोग वीक पड़ जाते हैं, जनरली नहीं चलते, दे चूज़ अ ईजी वे. किस तरह से स्ट्रॉन्ग एथिक्स को मेंटेन करके लाइफ को बैलेंस के साथ प्रोग्रेशन मोड में लाया जा सकता है, राइट? सो यू हैव टू सी कि कहाँ किसके साथ क्या गलत हो रहा है, सच झूठ, अच्छा बुरा, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, राइट? और हेल्दी डिस्क्रिमिनेशन एंड अनहेल्दी डिस्क्रिमिनेशन. So these are the things where you have to see um, with the vision of a judge कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे इस चीज़ को इन अ बैलेंस्ड वे मेंटेन किया जा सकता था, कहाँ पे बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं बिहेवियर में, इमोशनल स्टेज में, फिजिकल बिहेवियर में, मेंटल स्टेट में. लोगों को आपको अवेयर करना है बीइंग अ स्पिरिचुअल टीचर कि सही क्या है गलत क्या है. एक तो आपको उन्हें ये बताना है और दूसरा किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को कि हम सही जा रहे हैं या गलत, वहाँ पे एक जो एक थिन बाउंड्री होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक हेल्दी डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक हेल्दी बाउंड्री लाइन होती है कि ये सही है और ये गलत है, या ये जो इमोशन है या ये जो बिहेवियर है ये इस पॉइंट तक सही है और इसके बाद अगर ये एक्सीड करता है तो देन इट इज़ रॉन्ग. So you have to guide people like that, and you have to guide it being a spiritual teacher. आपको उनको असिस्ट करना है, जिसके लिए आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी और आपको लोगों को अवेयर करने के लिए पहले खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में जाना पड़ेगा, खुद अवेयरनेस में जाना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू असिस्ट पीपल कि वो अपनी लाइफ के इश्यूज़ को कैसे डील करें, राइट? तो आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी थॉट्स हैं, एक सिचुएशन में जब आप किसी के साथ कुछ गलत होते देखते हो, अन्याय होते देखते हो, इनजस्टिस होते हुए देखते हो, आपको क्या फीलिंग आती है, आपकी क्या थॉट्स होती हैं, आपका क्या थॉट पैटर्न होता है उस टाइम अबाउट द केस कि यहाँ पे ये गलत हुआ, इट कुड बी लाइक दिस, और शायद कुछ ऐसी सिचुएशन होती तो ऐसा होता ही नहीं, या फिर इसमें क्या बैलेंस हो सकता था, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, दैट वे, राइट? या इसमें क्या फर्दर बेटरमेंट हो सकती है. जो सिचुएशन है एज ऑफ नाउ वो है, बट इसमें अब बेटरमेंट क्या हो सकती है. सो यू हैव टू like gain that wisdom first of all, and this is the high time for you to start this because a lot of people are in the need of justice. So when you will gain this wisdom you'll be able to understand things in a much better way, and then you will be able to teach people about it. आप लोगों को बता पाओगे इस बारे में, and you will be a spiritual teacher like this. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जज ही हो आप या जज से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो. सी दीज थिंग्स आर विद इन, हमें पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है. इट्स जस्ट दैट वी डोंट इनिशिएट बिकॉज समवेयर
हम लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लैक कर जाते हैं. बट वंस यू गेन विजडम, वंस यू आर इन टू कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, you will be highly confident as well. You'll very well understand how things should go, how things should be maintained, how things should be balanced, everything, right? So you can guide people better once you are in that confident and aware, conscious state, right? So this is your sole purpose. लोगों को जस्टिस दिलाना, पहले अच्छा बुरा समझना, सही गलत समझना, और उसके बाद एज अ स्पिरिचुअल टीचर अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी, बिकॉज हर चीज़ जो सामने दिखती है वो वैसी होती नहीं है, और जो होता है वो बेसिकली दिखता नहीं. तो इन अ लॉट ऑफ केसेस यू विल नीड योर इंट्यूशन टू हेल्प यू. तो आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप करनी है सो दैट आप लोगों को अवेयर कर पाएँ और उनको हेल्प कर पाएँ कि अपने लाइफ इश्यूज़ के साथ कैसे डील करना है. सो दिस इज़ योर life purpose, Miss Sharmila. Thank you so much. Another reading is for Miss Ananya. One second. Hold on. So these are your two cards, Miss Ananya. One card is Complementary Health Practitioner, right? And second card is Lawyer. The lawyer card is based on the aspect of justice, and Complementary Health Practitioner card is based on the aspect of healing. So Ananya, मे बी आप ऑलरेडी एक हीलर हो, एंड इफ यू आर नॉट, देन you have to pursue the profession of healing, or you can do it side by side as well if you are into some other profession. So your cards say, do you like to find alternative healing methods when dealing with a health issue? Do the research to find non-mainstream therapies and practices for health challenges. Recognize that there are many healthcare practices that align with the body, mind, spirit path to health and wellness. And the lawyer card says, do you have a tendency to want to offer advice or mediate on others' behalf? Be willing to negotiate to arrive at a fair outcome when disagreements arise. Diplomacy is required at this time, and always keep your own counsel and be clear and calm. So together your cards say, सो अनन्या, आपको एक हीलर का रोल प्ले करना है, और जो भी हीलिंग थेरेपीज होती हैं, लाइक रेकी हीलिंग होता है, चक्रास हीलिंग होता है, एंजल थेरेपीज होते हैं, एंड देर आर अ लॉट ऑफ हीलिंग मेथड्स. तो आप इनमें से कोई भी मेथड जो है वो परस्यू कर सकते हैं. यू कैन हेल्प द पीपल जो नीडी एंड पुअर पीपल होते हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी हेल्प कर सकते हो. प्लस जो ये आपकी विद्या है, ये आप दूसरों को सिखा के भी आप उनको हेल्प कर सकते हो. यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन. इसकी अर्निंग से भी आप नीडी पीपल को हेल्प कर सकते हो. प्लस जब आप किसी को ये सिखाते हैं विद्या, तो जो बहुत ही पुअर पीपल हैं या नीड में हैं लेकिन उनको सीखना है बट दे कांट पे टू यू, तो उनको आप कम से कम प्राइस में यू कैन मेक देम लर्न, या फिर उनको लाइक सब्सिट्यूट चार्जेस आप उनसे कुछ कर सकते हो कि I'll help you learn these, but you will have to like spread it further to some people. इस तरह से.
राइट। तो इस तरह से ये विद्या जो है ये आगे स्प्रेड भी होगी, गोल्डन एरा तक भी पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। तो राइट, तो बीइंग अ हीलर आपको लोगों को हील करना है। सी, द कार्ड रिप्रेजेंट्स alternate healing methods. Basically as a healer, like reiki healer, chakras healer, or angel therapy master or something like that. तो इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। और अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में भी हो तो भी आप जो आपका लाइक मेडिकल स्ट्रीम है उसके बियॉन्ड जाकर भी आप लोगों को ये जो हीलिंग थेरेपीज होती हैं यू कैन हेल्प देम विद दीज, राइट, एज एन एडिशनल ट्रीटमेंट। तो आई गेस इट विल नीड अ परमिशन अगर आप इससे प्रोफेशनली करते हो, इफ़ यू आर अ मेडिकल एडवाइज़र और समथिंग। बट अगर आप अपने लाइक प्राइवेटली काम कर रहे हो, इंडिविजुअली बेस्ड है आपका प्रोफेशन, तो आप इजीली यू कैन लाइक ट्रीट द पीपल मेडिकली एज वेल, और ये वाली हीलिंग सर्विसेज भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो उनको इनके सिग्निफिकेंस, इनके एडवांटेजेस को गाइड करते हुए, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइक अ डिजीज़ कैन बी क्योर्ड विद द मेडिसिन, बट इंटरनली अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बार बार हमें कोई डिजीज़ या डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, सो इट नीड्स टू बी हील्ड परमानेंटली। एंड देन ये जो हीलिंग मेथड्स होते हैं ये बहुत काम आते हैं, बिकॉज ये ही इंटरनली हमारा जो डीएनए है उसको क्लेंस करते हैं, राइट, avoiding the diseases and depression and everything like that. तो you can be a healer as well, और being a healer आप, as I told you, needy लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं, और आप ये जो विद्या है ये आगे भी स्प्रेड कर सकते हैं। एंड जो बीइंग अ प्रोफेशनल हीलर, इफ़ यू आर इन टू दैट जोन, या आप आगे से परस्यू करेंगे एज अ प्रोफेशन, तो भी आप अपनी अर्निंग से भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो ज़रूरत में है। और जो लोग ये विद्या आपसे ग्रहण करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव मनी टू पे टू यू, आप उनको कम से कम फीस लेके या इन अ सब्स्टिट्यूट वे यू कैन impart this education to them. Along with that, जब आप लोगों की हीलिंग करेंगे यू विल गेट टू नो देयर स्टोरीज। आपको पता लगेगा उनके साथ क्या गलत हुआ, किस रीज़न से वो डिप्रेशन में है, किस रीज़न की वजह से उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो सही नहीं है, उनका मेंटल स्टेट सही नहीं है, उनका इमोशनल स्टेट जो है वो डगमगा गया है, दे आर नॉट स्टेबल बेसिकली, ठीक है, ओवरऑल अलाइनमेंट उनका जो है वो हिल गया है। सो जब आप हीलिंग करेंगे ये स्टोरीज आपको उनकी समझ आएंगी, दे विल टेल यू देयर थिंग्स, एंड देन यू विल हैव टू सपोर्ट देम बाय गाइडिंग देम। पहली बात तो आप उनको हील करके उनके सपोर्ट करोगे, राइट। और सेकेंडली, इफ़ यू फील दैट दे आर अनअवेयर या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बहुत सारी स्टोरीज में आपको दिखेगा कि लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, या फिर लोग खुद ही अपने साथ बहुत कुछ गलत कर लेते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हमने क्या कर लिया है अपने साथ, राइट। एज आई से कि समय चक्र तो घूमता है डेफिनेटली, बट लोग जो होते हैं ना उस चक्र में गोल 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 घूमते रहते हैं और वही गलतियां करते जाते हैं, और फिर वही चीज़ें उनके सामने आती जाती हैं सिचुएशंस, और वो उसी में भुगतान करते चले जाते हैं। बट इंस्टेड दे हैव टू मूव इनटू स्पाइरल्स, ठीक है। उसमें गोल गोल जब आप घूमते हैं आप थोड़ा थोड़ा सीखते भी जाते हैं लेसन्स, आप उन सिचुएशन से राइज अबव भी होते हैं, उन ट्रॉमा से, उन पेन से राइज अबव भी होते हैं, एंड ग्रेजुअली यू मूव आउट ऑफ दैट समय चक्र, आप एक बेटर जोन में होते हैं देन, राइट। तो लोगों को बताइए कि आप बार बार ये गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से आपको एक प्रॉपर जो आपकी अलाइनमेंट है वो बिगड़ गई है। और लोगों को आप लाइक यू कैन गाइड देम कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनको काउंसिल कीजिए कि कैसे वो अपने लिए न्याय मांग सकते हैं, कैसे वो अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं। इफ़ यू आर इनटू सच अ पोजीशन कि आप उनको सपोर्ट कर सको, उनकी लड़ाई में उनकी लड़ाई को आवाज़ दे सको, या लीगली उनको हेल्प कर सको, डेफिनेटली यू शुड डू इट, ठीक है, बिकॉज योर लॉयर कार्ड सेज दैट।
लेकिन अगर आप एग्जैक्टली लॉयर नहीं हैं प्रोफेशन से, यू कैन गिव देम द लीगल गाइडेंस एज वेल, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक हैं, या पीपल आर वेरी हेल्पलेस एंड अनअवेयर अबाउट द थिंग्स, ठीक है। तो आप उनको जस्टिस दिलाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको हील कीजिए, उनको अवेयर कीजिए उनके साथ क्या गलत हो रहा है, कोई उनके साथ क्या गलत कर रहा है या वो अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं खुद के साथ, और किस तरह से वो अपने आप को हील कर सकते हैं। तो हीलिंग डेफिनेटली वो अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, बट ऑब्वियसली उन्हें लॉजिकल वे में ही वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दे विल डू दैट हीलिंग, बट प्रैक्टिकली अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, दे विल हैव टू बी अवेयर, दे विल हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स, दे विल नीड टू raise their voice for justice, they'll have to ask for justice, right? उनको मांगना पड़ेगा अपने लिए इंसाफ, so you can guide them and you can help them legally as well. If you're into a legal profession, like you're a lawyer or an advocate or something related to justice, बहुत easy हो जाएगा आपके लिए ये काम करना, उनकी हेल्प करना। And if you're not, even then you can guide them, uh, एंड बेसिकली यू हैव टू हील देम, और उनकी जो स्टोरीज आपको पता चलेंगी उसके बाद आपको उनको गाइड करना है कैसे वो अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर आए, राइट? इन स्पिरिचुअल सेंस एज वेल एंड इन 3D, यानी कि प्रैक्टिकल सेंस एज वेल, राइट? तो 3D और 5D उनका कैसे बैलेंस करना है, यू हैव टू सपोर्ट देम विद दिस नॉलेज, ओके? यू हैव टू सपोर्ट देम, and this is your life purpose, Miss Ananya. Thank you so much, dear. And another reading is for Miss Ishika Sen. Let's take this card. So you have got two cards, Miss Ishika Sen. The first card is comedian and second card is historian, right? So your card says your historian card is basically based on the facet of investigation, and your comedian card is based on the facet of entertainment, right? So let's see what your cards say. Are you interested in human history, artifacts, and archaeological sites? Improve your empathy for the present human condition through an understanding of the wisdom of those who once walked on a similar path. Look at belief systems and past situations to uncover awareness of karmic lessons, right? And your comedian card says, are you a natural at sharing relatable stories that make others laugh? Observe the pattern of your life. Realize that you aren't the only one having these experiences. Find the levity in observing and participating in events and laugh. Right? So, together, your cards say, राइट। तो इशिका, ये जो हिस्टोरियन कार्ड है ना, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आर्टिफैक्ट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, राइट? दिस इज अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, और ह्यूमन हिस्ट्री में ये नहीं है कि हमें लाइक आर्कियोलॉजिकली हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है। दिस इन्वेस्टिगेशन कार्ड इज बेसिकली
Based on the facet कि लोग आज की डेट में कितने अनअवेयर हैं, कितने अनकॉन्शियस हैं, राइट? जो भी ह्यूमैनिटी में चलता है, हम डेली बहुत सारी न्यूज़ भी सुनते हैं, एवरीथिंग गोज़ ऑन। अच्छा बुरा सही गलत, हम बहुत सारी चीज़ों में बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन नाउ वी नो द फैक्ट्स कि किस तरह से चीज़ों को चलना चाहिए, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हैंडल होनी चाहिए थी प्रीवियसली एज वेल, बट वो नहीं हुई। और फर्दर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन के आगे के लिए क्या बेस्ट है, सो वी नो दैट एंड वी नो कि गलती कहाँ पर हुई है। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली एक अच्छी ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई है। लोग आज भी अनअवेयर हैं कि एक सही लाइफ किस तरह से जी जाती है, सही डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, लाइफ को बैलेंस कैसे करना होता है, खुद को अलाइन कैसे करना होता है यूनिवर्स के साथ। पीपल डोंट नो द लॉज ऑफ यूनिवर्स। लोगों को पता नहीं बेसिकली कि उनमें जो भी उनके पैटर्न्स हैं, जो उनसे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेते हैं, या हाथ में आई हुई चीज़ें चली जाती हैं, या फिर अम, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वो लाइफ टाइम बस सपने में ही देखते रहते हैं, उसका सपना देखते रहते हैं और उनके हाथ नहीं आती, राइट? तो इट कॉजेज डिप्रेशन, इट कॉजेज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट कॉजेज लाइक सॉर्ट ऑफ मेलंकली, उदास हो जाते हैं वो। और उदासीनता जो है उनके लाइफ के हर फेज में, हर जोन में फिर झलकने लग जाती है, राइट? तो दिस कार्ड सेज कि आपको लोगों को कांटेक्ट करना है, या एज अ चैनल यू हैव टू स्टार्ट इम्पार्टिंग द एजुकेशन कि बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, कैसे जो पुराने संस्कार होते हैं, लाइक संस्कार डजंट मीन अपब्रिंगिंग। संस्कार मीन्स के जो भी आपके फर्स्ट बर्थ से लेके आपकी सोल के जो अभी तक के पैटर्न्स रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स के पैटर्न्स रहे हैं, या आपकी प्रेजेंट लाइफ का जो अभी तक लाइक प्रीवियसली जो जितनी जा चुकी है उसमें आपका जो कर्म रहा है, बेस्ड अपॉन दैट एक इंसान को वो मिलता है जो वो सामने फेस कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। वो सिचुएशन आती है, वैसे ही लोग उनकी लाइफ में आते हैं, वैसी ही चीज़ें उनकी लाइफ में आती हैं, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आती हैं। एंड इफ़ दीज थिंग्स आर हील्ड, जो उनके कर्म हैं प्रेजेंट लाइफ के अभी तक के जितने भी कर्म हैं, अगर वो ठीक हैं, या जो भी लाइफ ने उनके आगे सिचुएशन अगर टफ से टफ भी थ्रो की लेकिन वो गलत नहीं हुए, उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से डील किया, बेस्ट वे में डील किया, उस चीज़ से ऊपर उठे लाइफ में और आगे कॉन्फिडेंट होके, या लाइफ को और अच्छे से एक्सेप्ट करके, चीज़ों को फॉरगिव करके, सिचुएशंस को फॉरगिव करके, लोगों को फॉरगिव करके लाइफ में वो आगे बढ़ने की कोशिश में है, समर्पण की स्थिति में है, लाइक दे आर सरेंडर्ड टू गॉड और डिवाइन, जो भी उनका लाइक रिलीजियस फेथ है, दे शुड बी सरेंडर्ड। दे आर लाइक दे शुड नॉट बी कंट्रोलिंग। और जो भी उनका जो लाइक एंसेस्ट्रल कर्मा था उसको भी वो क्लीन कर लेते हैं जब वो समझ जाते हैं कि उन्हें चाहे कोई भी सिचुएशन लाइफ थ्रो कर रही है वो उनको सिखाने के लिए है। उस पेन को उन्हें गले नहीं लगाना, उस पेन को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। जो भी सिचुएशन है उसमें अपने बेस्ट एफर्ट्स देने हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, और ये देखना है कि अब इसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है। बेसिकली जो पेन उन्हें फील हुआ किसी भी सिचुएशन में उसको फॉरगिव करना होता है, चाहे किसी की वजह से भी हो। लोगों की भी लाइक समझना पड़ता है कि जो जिसने भी उनके साथ गलत किया उसका भी कुछ बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, चाहे पास्ट लाइफ का चाहे प्रेजेंट लाइफ का, जिसकी वजह से उनका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो गलत रहा। एंड दे नीड टू फॉरगिव द सिचुएशन। ऑब्वियसली अगर चीज़ें कहीं बहुत गलत है,
ठीक है? तो उन्हें जस्टिस की माँग करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ को बस माफ़ करके बैठ गए, किसी ने भी किसी को कुछ भी कर दिया तो माफ़ कर दिया। इट्स जस्ट दैट कि आप जस्टिस माँगिए, जो भी लीगल एक्शन है वो लीजिए, लेकिन मेंटली उस चीज़ को अपने अंदर मत पालिए, ठीक है? हेट मत पालिए अपने अंदर, या इतना दर्द मत पालिए उस चीज़ को कि वो सिचुएशन आप कभी फॉरगिव ना कर पाएँ, और इन फ्यूचर अगर ऐसी सिचुएशन या इस तरह का कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप डर जाएँ। यू शुड बी लाइक उस चीज़ को समर्पण करके कि आप जो भी बेस्ट एफर्ट्स हैं उससे लड़ने के लिए, उसको फॉरगिव करने के लिए यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट देन डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो भी सामने आता है, आप समर्पण में आइए कि मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रहा हूँ, बाकी जो रिजल्ट है वो मैंने आपके हाथ छोड़ा है। और चीज़ों को कंट्रोल या मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, समर्पण में आ जाइए कम्प्लीटली, तो जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। एंड यू कैन टेल देम कि ग्रैटिट्यूड में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो कुछ भी हमें इस लाइफ में मिलता है वो हमारी पास्ट लाइफ्स या इस लाइफ की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मन्नतें होती हैं जो हमें मिलती हैं इन अ वेरी गुड फॉर्म, और फिर जब वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। आगे बाकी चीज़ों के लिए हम लोग रोने लगते हैं या और चीज़ें माँगने लगते हैं, या फिर थैंकलेस एनर्जी में आ जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। या फिर हम जो हमें मिला होता है उसमें खुश नहीं होते, हम सोचते हैं कि इससे कुछ बड़ा मिलेगा तब हम खुश होंगे, और जब वो बड़ी चीज़ भी हमें मिलती है तब भी we simply lose that sense of happiness, we become greedy, राइट? तो ग्रेटफुल जब हम होते हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे वो सिचुएशन एडवर्स हो या हमारे फेवर में हो, राइट? हमारे फेवर में हो या हमारे फेवर में नहीं हो, इन बोथ द केसेस व्हेन वी आर ग्रेटफुल, बिकॉज कुछ ना कुछ तो हमें एक चीज़ से लर्निंग मिलती है। व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग और दैट सिचुएशन और दैट लेसन एज वेल, देन ऑटोमेटिकली हमें समझ आने लगता है कि कितनी सारी चीज़ों से हमें बचाया गया है, या कितनी सारी चीज़ें बेसिकली हमारे लिए अच्छी थी, जिन्हें हम एक सेल्फिश माइंडसेट से जब देख रहे थे, या नॉन एक्सेप्टेंस से जब देख रहे थे, या नॉन सरेंडर वाली मोड से देख रहे थे, नॉन फॉरगिवनेस से देख रहे थे, नॉन ग्रेटफुलनेस से देख रहे थे, तो वी वर लाइक कि क्या हुआ, एंड things were not in our control, or we were facing depression and all such things, diseases भी आ जाती हैं बॉडी में। बट when we are thankful for everything, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, then we automatically get to know कि how universe works, और कैसे चीज़ें हो रही थी हमारे लिए। शायद आगे कुछ बहुत बेटर था, कुछ बेस्ट था, जहाँ हमें ले जाया जा रहा था, बट क्योंकि हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं उस तरह से वो चीज़ें हमें नहीं दिख रही थी, तो वी वर वरीड, वी वर बॉदर्ड, वी वर इन अ थैंकलेस स्टेट। बट जब हम ये समझने लगते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड में आते हैं, ग्रेटफुल होते हैं हर सिचुएशन में, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस चीज़ के पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा, और वो चीज़ हमारे सामने आती है, हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि लाइफ हमें कहीं कुछ बेटरमेंट के लिए आगे लेके जा रही है, या कुछ बहुत ही गलत चीज़ जो कि हमें अच्छी लग रही थी उससे हमें बचाया गया, शायद वो चीज़ आगे जाकर हमारे लिए हार्मफुल हो जाती। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये सब चीज़ें आपको लोगों को समझानी है बेसिकली। तो यू हैव टू टीच ऑल दीज थिंग्स टू पीपल, ठीक है? लोगों को बताना है कि किस तरह से उन्हें अपना डीएनए क्लियरेंस करना होता है, चीज़ों से ऊपर उठना होता है, दर्द से ऊपर उठना होता है, क्योंकि अर्थ इज़ लाइक अ स्कूल, और लाइफ जो है ये पूरा एक सिलेबस है जो हमें दिया जाता है, इससे हमें ऊपर उठना होता है हमेशा। और जब हम अपना डीएनए क्लियरेंस करते हैं, तो हम अपना पूरा एंसेस्ट्रल जो एक टाइमलाइन चली होती है उसको क्लेंस कर पाते हैं, राइट? क्योंकि ये जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें नेगेटिविटी आ जाती है, जिनकी वजह से ये एंसेस्ट्रल कर्मास होते हैं, या हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, हमारे करंट लाइफ के प्रीवियस कर्म होते हैं। लेकिन जब हम इन कर्मों को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं ना, जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो
वो जो एंसेस्ट्रल टाइमलाइन होती है ना, जहाँ पे कहीं पे कुछ हमें डैमेज हुआ होता है, और वो जो डिफेक्टिव या वोंडेड डीएनए है हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो गया होता है, जब हम हील हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो एंसेस्ट्रल लाइन होती है वो पूरी क्लेंस हो जाती है, वो पूरी हील्ड हो जाती है। एंड फर्दर ऑल्सो व्हेन वी एक्सपेंड आवर फैमिलीज, तो हमारी जो जनरेशन्स होती हैं वो भी हील्ड आती हैं, क्योंकि दे हैव गॉट द हील्ड डीएनए विद इन देम देन, ठीक है। तो वो एक पूरी टाइमलाइन जो होती है वो क्लियर हो जाती है फैमिलीज की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को इस तरह की नॉलेज मिले, एंड यू हैव टू लाइक काउंसिल पीपल। आप उनको काउंसिल करके, आप उनकी सिचुएशन सुन के, उनकी स्टोरी सुन के, आप उनको बताइए कि बेसिकली उन्हें कैसे अपनी हीलिंग करनी है, कहाँ पे क्या गलत जा रहा है, कहाँ पे उन्हें कैसे ठीक करना है, राइट। और यही चीज़ें जब आप कुछ लोगों से डील करेंगे, केस स्टडीज़ होंगी आपके पास उनकी, तो आई फील यू हैव अ कॉमेडी नेचर। तो बीइंग अ कॉमेडियन, यह बहुत ही नॉट इन अ सीरियस वे, राइट, थोड़े से ह्यूमरस वे में आप लोगों के आगे वो जो केस स्टोरीज हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, और लोगों को, इफ़ यू हैव दिस स्किल ऑफ कॉमेडियन, वेल एंड गुड। अदरवाइज थोड़ा सा लाइक नॉन सीरियस या ह्यूमरस वे में आप लोगों के आगे ये केस स्टडीज रख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस उन्हें बता सकते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम स्प्रेड हो, एंड दे विल बी इन टू द कॉन्शियसनेस कि कैसे लाइफ को जिया जा सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज के बहुत ही लाइक सीरियस वे में ये बातें सिखाई जाए। इफ़ यू हैव द स्किल ऑफ अ कॉमेडियन, यू कैन teach people in a very humorous way as well, and they will understand your uh, things, your aspect in a वेरी गुड मैनर, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो उनके फ़ायदे के लिए है, और इन अ नॉन सीरियस वे है, बिकॉज लाइफ हैज़ बीन वेरी सीरियस दीज डेज, ठीक है। पीपल टेक थिंग्स वेरी सीरियसली बेस्ड ऑन द ईगो, सो यू हैव टू टेल देम, ठीक है, कि ह्यूमरसली अगर आप उन्हें बताएंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी ईगो नहीं हर्ट होगी, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसा जाएगा जिससे उन्हें सोचने पे एक बार मजबूर भी करेगा, और वो इन चीज़ों को फिर एप्लीकेबल करने की कोशिश भी करेंगे लाइफ में, राइट। सो यू हैव टू गिव देम दीज गुड लेसन्स, बीइंग अ हिस्टोरियन, लाइक लोगों का डीएनए क्लेंस हो जाए इस तरह से उन्हें ज्ञान दीजिए, एंड in a humorous way, of course, right? So this is your life purpose, Miss Ishika Sen. Thank you so much. Friends, next reading is for Miss Satya. Put well down. So let's take this one. Let's take this card. So Miss Satyam, you have got two cards. One is of chef, तो यू कैन बी अ शेफ प्रोफेशनली, या फिर आपकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। एंड अनदर कार्ड इज अबाउट health practitioner, so this card is based on the healing, and chef card is based on the aspect of art. So together your cards are about healing people with your art, basically. uh, let's read the cards first of all. So, your health practitioner card says, do you like to find alternative healing methods when dealing with health issue? Do the research to find non-stream therapies and practices for health challenges. Recognize that there are many healthcare practices that align with body, mind, spirit path to health and wellness. And another card is of Chef.
which says, are you fully present during food preparation or are your thoughts elsewhere? Observe your thoughts and stay in the moment with each vegetable you cut and each meal you prepare. Maintain a grateful attitude for all it took to bring food to your kitchen. Right? And I'm very sorry for the background noise. It's coming from neighborhood. So together your cards state, see Satyam, you can already be a healer as well, ठीक है? तो अगर आप healing में हैं तो continue your healing profession. You can do it professionally or you can do it side by side. You can take it as a side profession. तो आप लोगों को हील करते रहिए. Like you can go for Reiki healing or chakras healing or angel therapies or any such therapies, ठीक है, and heal the people. And you can make it your profession. इसकी earnings से भी कुछ हद तक आप लोगों को heal कर सकते हैं. And जो भी नीडी या पुअर पीपल हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं, राइट? और जो भी लोग you feel that they have the gift of healing somehow, या जिनको भी इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है बट दे कांट पे टू यू, आप ये विद्या उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फर्दर और उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग टू मी, आपको आगे 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को ये जो चीज़ है ये सिखानी है, राइट? कुछ भी आप उनको इस तरह से गाइड कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट, जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, राइट, इससे, इस प्रोफेशन से, या अगर ये आपका साइड प्रोफेशन है तो इसकी अर्निंग्स जो भी हैं आपकी, उससे आप लोगों को, जो नीडी, हंग्री, हेल्पलेस लोग होते हैं, स्ट्रीट किड्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं रास्ते पे, बच्चे होते हैं, कुछ यंग लोग भी होते हैं जो हेल्पलेस हैं, हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली चैलेंज हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, यू कैन हेल्प देम, ठीक है? उनको हीलिंग प्रोवाइड करवा सकते हो आप, और साथ में आप उनको फूड दे के भी हील कर सकते हो. लाइक they are hungry, when someone is hungry, food is something जो अमृत बन के उनके लिए आता है, राइट? एंड दे गेट अ लॉट ऑफ हीलिंग आउट ऑफ इट, दे गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ इट. आपकी एक छोटी सी मदद से कोई कुछ देर और सरवाइव कर पाता है दुनिया में, राइट? इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, ठीक है? एंड इफ़ यू आर इन द प्रोफेशन ऑफ शेफ़ या ऐसा कुछ इससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, आपकी स्किल्स हैं, कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी शेफ़ हैं तो then also you can help the people by giving them meals. और जब भी आप ये meals लाइक प्रोवाइड करें लोगों को, मेक श्योर कि बहुत ही केयरफुली आपने कुकिंग की है, बिकॉज ज़रा सी केयरलेसनेस कैन बी हार्मफुल टू यू एंड टू अदर्स एज वेल. एंड इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करने में, जो भी नीडी, हंग्री, हेल्पलेस पीपल होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, स्ट्रीट किड्स हैं या ऑर्फन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी हैं, इफ़ यू आर फीलिंग हेल्पलेस कि कैसे डेली बेसिस पर इनको फूड प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको कैसे हेल्प की जाए, इन दैट केस यू कैन टेक द हीलर्स प्रोफेशन एज अ फुल टाइम थिंग, ठीक है? एंड यू कैन रिसीव द अर्निंग्स, और इस अर्निंग से आप लोगों को हेल्प कर सकते हो. So being a healer, you can provide them with healing and food. और अगर आपको इशू है कि आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं बट यू आर नॉट अर्निंग, तो आप हीलिंग का प्रोफेशन साइड बाय साइड कंटिन्यू करके यू कैन
गेट द अर्निंग्स फॉर योर सेल्फ एंड थोड़ा सा पार्ट उस अर्निंग का यूज करके यू कैन फीड द हंग्री पीपल, द हेल्पलेस नीडी पीपल एज वेल, and make sure that you always cook with great care, with all the careful attitude, बिकॉज गलत फूड अगर किसी के पास चला गया जो केयरफुली नहीं बनाया गया है, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू यू एंड टू अदर्स एज वेल. So this is your life purpose, Miss Satyam. Thank you so much. Next reading is for Miss Jyotsna M. Start. Let's take this card. So Jyotsna, you have got two cards, environmentalist and dancer. So you can already be an environmentalist professionally or you could be a dancer professionally, या फिर आपकी skills बहुत अच्छी होंगी, maybe you must be God gifted. And your cards say, see, the environmentalist card is based on the aspect of protection and dancer card is based on the aspect of entertainment. This card says, do you have a strong affinity for the well being of nature and the environment? Bring your focus towards earth centered awareness and observe how your actions influence the environment for the next 7 generations. Remember, you're a steward of the earth, and your dancer card says, do you have natural rhythm in your body movements? Develop strong core muscles for your center and improve flexibility. Express yourself through movement and release pent up energy and emotions. Be fluid and graceful in all aspects of your life. So, together, your cards say, ज्योत्सना, आप अगर ऑलरेडी एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में हैं, देन आपको नेचर और एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, सेफगार्ड के लिए और डेवलपमेंट के लिए, एनहेंसमेंट के लिए स्टेप्स लेने होंगे. अर्थ सेंटर्ड अवेयरनेस आपको स्प्रेड करनी होगी लोगों में. फ्लोरा और फौना को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पीशीज़ को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, और ग्रीनरी मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है अर्थ पे, पोल्यूशन को स्टॉप करना कितना इम्पोर्टेंट है, वाटर सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, सॉइल प्रिजर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, एयर को पोल्यूशन से रोकना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड दिस वे यू हैव टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू एंटायर ह्यूमैनिटी, क्योंकि लोग दिन रात चीज़ों को पोल्यूट करे जा रहे हैं, स्पॉइल करे जा रहे हैं, राइट, फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करके लोगों को अवेयर करना है थ्रू सम चैनल और थ्रू सम बुक, थ्रू सम मीडिया, एनी हाउ. एंड यू विल हैव टू सी कि आप जो भी कर रहे हो एनवायरनमेंट के लिए, वो एक्शंस कुछ इतने इफ़ेक्टिव हों जो कि आगे की 7 generations एंड मच मोर
वहाँ तक उनका इम्पैक्ट रहे जो आज आप करोगे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज प्रकृति इज़ लाइक दैट, नेचर इज़ लाइक दैट। जो हम आज एक सीड सो करते हैं उसका फ्रूट आगे 100 years तक या उससे भी ज़्यादा तक लोगों को मिलता रहता है। सो इन द सेम वे जो आप आज इस प्रोफेशन से या इस काम से अपने पर्पज से एक सीड सो करोगे कि लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करो, या कुछ ऐसे एक्शंस लीजिए जिससे आप लोगों को इंस्पायर करें कि एनवायरनमेंट को सेव करना, एनवायरनमेंट का वेल बीइंग, नेचर हमारे लिए कितना कुछ करती है, ये सब कॉन्शियसनेस बच्चों में, यंग यंग पीपल में और इवन बुजुर्गों में ही स्प्रेड करिए। तो जो आज आप एक पर्पस का बीज बोएंगे वो आगे आने वाले बहुत सारी जनरेशन्स में इसका इफेक्ट आएगा, राइट? So you have to act like a steward of the earth. And another thing is, if you have good dancing skills or you're a professional dancer, then आप नेचर में थोड़ा जब टाइम स्पेंड करेंगे यू विल सी कि कितना रिफ्रेशमेंट लाइफ में आता है, बॉडी को कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये रिफ्रेशमेंट जो हमें नेचर से मिलती है। नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचर में जो भी ब्यूटी होती है, या नेचर से रिलेटेड चीज़ों में कितनी ब्यूटी होती है, बर्ड्स हैं, हैं, एनिमल्स के यंग वंस होते हैं या ह्यूमंस के न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, लाइक जो कि प्रकृति को पूरी तरह से सरेंडर्ड होते हैं, जो कि उसे स्पॉइल नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, ख़त्म नहीं करना चाहते। आप ऐसी जितनी भी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे यू विल बी इन लव विद देम, और ये सारी जो हैप्पीनेस यू विल गेदर, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी नेचर से और उससे जुड़े लोगों से, दिस एनर्जी विल फिल यू विद अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो इफ़ यू आर अ गुड डांसर, इफ़ यू हैव गुड डांसिंग स्किल्स या आपको शौक है डांसिंग का, तो विद द हेल्प ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल, बीइंग अ डांसर, आप कुछ ना कुछ ऐसी थीम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में गाइड करें, उनको वो कॉन्शियसनेस लोगों में जगाएं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और अगर आप डांसिंग के ज़रिए एनवायरनमेंट की सेफ्टी में कॉन्शियसनेस जो है वो स्प्रेड करते हैं, तो डांसिंग स्किल्स अपनी बेटर करिएगा, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे जैसे नेचर में आप टाइम स्पेंड करते जाएंगे, आप जैसे जैसे नेचर को समझते जाएंगे, बेसिकली आप जैसे जैसे हवा को, खिलते हुए फूलों को, शेडिंग ऑफ लीव्स और फिर कमिंग ऑफ न्यू लीव्स, शेडिंग ऑफ barks and then arrival of new skin on the trees, birds chirping, एनिमल्स का जो सरेंडर होता है टुवर्ड्स नेचर, जैसे ही आप इन चीज़ों को देखने लगेंगे, समझने लगेंगे ना, इट विल क्रिएट अ रिदम इन योर बॉडी। ऑटोमेटिकली जो आपकी डांसिंग स्किल्स हैं वो और बेटर होती जाएंगी, एंड विद योर डांसिंग यू कैन क्रिएट अ थीम जिससे आप लोगों को एनवायरनमेंट की सेफ्टी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और ज़्यादा गाइड करें। एंड इट कैन बी अ थीम ऑफ योर डांसिंग, और अदरवाइज अगर आपकी ये स्किल जो है बीइंग अ डांसर या बीइंग एन एनवायरनमेंटलिस्ट, आप फेमस हो जाते हो आगे या बहुत सारे लोग आपको जानने लगते हैं, even then you can help them to raise a consciousness to spend time in nature so that they will get a flexibility within themselves and they will get to dance according to nature. Their hearts will dance according to nature. So you have to create such an environment कि प्रकृति को बचाना है, एनवायरनमेंट को सेव करना है, लोगों को अवेयर करना है। अगर डांसिंग स्किल्स अच्छी हैं तो कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आपको बनना है, एक थीम सेटअप करनी है एनवायरनमेंट के लिए जिससे आप लोगों को अवेयर कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रकृति की तरफ
मोड़ सको, सो दैट वो प्रकृति को आगे बचाएं भी, और बदले में नेचर ऑलवेज मेक्स everybody's heart sing and dance. So this is your life purpose, Miss Jyotsna M. Thank you so much. Stick this card. So this reading is for Miss Rakhi Ghosh. Rakhi, you have got two very different cards. One is being a scientist, which is based on investigation, and another one is police officer. You can see your cards, which is based on the aspect of justice. Your first card says, do you use mathematics data or hard facts and then make observations based on that information? Use accurate facts to uncover information and knowledge when making decisions. Do your research before arriving at a solution to any matter. And another card, which is police officer, based on justice, it says that is it important that everyone follows the rules and regulations established by society and the law? Police your thoughts, words, and actions as you go deeper into your intentions and motives. Establish and maintain a sense of safety and protection for yourself and those around you. So, together, your cards say, so, Rakhi, you can be in any one of these professions, or something related to justice or police or scientist or investigation. Uh, it may be your God gift to analyze things and to provide justice to people or something like that. But even if you don't have that human made degree, तब भी आप में कुछ skills होंगी definitely, कि आप चीज़ों के हार्ड फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते होगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है उसके फैक्ट्स को जानने की क्यूरियोसिटी आपको रहती होगी, जो भी एक्यूरेट फैक्ट्स हैं उनको आप अनकवर कर पाते होगे और एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाते होगे और फिर एक सोल्यूशन निकाल पाते होगे किसी भी सिचुएशन के लिए। तो आपका जो पर्पस है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्किल, कि आप एक चैनल सेटअप कर सकते हो या आप एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हो जिसमें आप हेल्पलेस जो लोग हैं या नीडी लोग हैं, अनअवेयर लोग हैं या समहाउ चैलेंज्ड लोग हैं, जिन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, या सोसाइटी जिन्हें इक्वल नहीं मानती या सपोर्ट नहीं करती है, you can set up a platform for such people, or you can set up a channel to help these people. ठीक है, इसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हो, नेबरहुड से कर सकते हो, मेड्स वगैरह से कर सकते हो, या आसपास में कोई भी ऐसी आपको हेल्पलेस लोग दिखते हैं या स्ट्रीट पे लोग दिखते हैं, यू कैन आस्क देम देयर स्टोरीज। जो भी उनकी स्टोरीज आप सुनोगे उसमें से आप कुछ फैक्ट्स निकाल सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि बेसिकली कहाँ क्या गलत हुआ, इनको कहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, कहाँ पे इन्होंने खुद ही जस्टिस के लिए मांग नहीं की, बेसिकली क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है इनकी सिचुएशन के लिए।
और इनको कैसे जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, करवाया जा सकता है. सो यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि ये लोग बहुत अनअवेयर होते हैं, बहुत ही इनका जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है ड्यू टू देयर कंडीशन, वो ऐसा नहीं होता कि ये खुद इन्वेस्टिगेट कर सके कि क्या हुआ. तो यू कैन डू इट फॉर देम. बेसिकली क्या होता है, जब लोग ऐसी स्टोरीज सुनते हैं इन लोगों की, तो वो बोलते हैं कि ओहो ऐसा हो गया, बट दे डोंट डू एनीथिंग फॉर देम. और ये जो लोग खुद होते हैं, ये भी जिंदगी भर यही बोलते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट वो ये नहीं देखते कि उन्हें क्या सिखाया गया है बेसिकली, और उन्हें अभी आगे क्या सीखना है. सो यू कैन इन्वेस्टिगेट दिस थिंग एंड कैन इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू देम, और उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करिए, उनको हेल्प करिए आगे के लिए डिसीजंस लेने में, सो दैट कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बेटरमेंट उनकी लाइफ में आ सके. एंड यू कैन एस्टेब्लिश अ प्लेटफॉर्म फॉर देम और अ चैनल फॉर देम, जिससे कि जब वो अपनी स्टोरीज शेयर करें आपके साथ, या आप उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाए तो करें, तो आप और वो सभी एक सेंस ऑफ सेफ्टी में हो, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन में हो. और जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन केस स्टडीज से निकालोगे, या सॉल्यूशंस निकालोगे इन केस स्टडीज से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़े, और अवेयर भी हो कि अगर वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उन्हें गलत नहीं करना है, या अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे उन्हें जस्टिस मांगना है अपने लिए. जो भी उनकी स्टोरी है, अगर वो आपके केस स्टडी से रेजोनेट करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे बढ़ के नहीं आते, बीइंग अ नॉर्मल हाउस होल्ड लेडीज की अगर आप बात कर लो, या कुछ बच्चों की बात कर लो, या बुजुर्गों की, फिजिकली मेंटली चैलेंज लोगों की बात कर लो, या एनी हेल्पलेस बीइंग्स, तो इफ दे विल रेजोनेट टू योर स्टोरीज, तो डेफिनेटली वो जो आपके बताए हुए सोल्यूशंस हैं वो परस्यू करेंगे, आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे. उनमें एक अवेयरनेस जागेगी, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जागेगी, जिससे कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये और आगे स्प्रेड होती जाएगी, और एक बेटरमेंट सोसाइटी में आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों की कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट आपके इस पर्पस से बेटर होगी. सो यू कैन क्रिएट अ betterment in the society by making people's lives better. If you have any legal sort of help, you can definitely involve such people in your purpose, so that you will get a better help. And बेसिकली यू कैन ऑल्सो गेन सम नॉलेज, क्योंकि आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाते हो कि कहाँ से इश्यूज आ रहे हैं किसी की लाइफ में, तो यू कैन गेन सम नॉलेज अबाउट जस्टिस, सम लीगल नॉलेज यू कैन गेन, कुछ ऐसा विजडम भी आप गेन कर सकते हो. एंड जिन भी लोगों के साथ कुछ गलत होते हुए आप देख रहे हो, यू कैन हेल्प देम, यू कैन गाइड देम कि वो लीगली कैसे अपने लिए फाइट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प देम by guiding them, supporting them in their fights. And this doesn't only applies to, and this doesn't only apply to human beings. इन केस आप एनिमल्स के साथ भी कुछ गलत होते हुए देख रहे हो, या कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ होते हुए देख रहे हो, फ्लोरा फौना के साथ ऐसा गलत होते हुए देख रहे हो, यू हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस कि बेसिकली क्या हो रहा है, क्यों कुछ चीज़ों को स्पॉइल किया जा रहा है, एंड यू कैन रेज योर वॉइस to receive justice for those things, or those people, or animals, birds, or living beings, including flora and fauna, as I said. So overall your purpose is to investigate कि कहाँ से
इशू क्रिएट हो रहा है, रूट कॉज क्या है किसी की प्रॉब्लम का, एंड प्रोवाइड देम विद द जस्टिस। उनको गाइड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो उनको जस्टिस दिलाने में, बाय क्रिएटिंग अ चैनल और बाय क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर देम। एंड डेफिनेटली इफ यू हैव सम सोर्सेज, legal sources or some such thing which can help you with the purpose, definitely you can take their help. So this is your life purpose, Miss Rakhi Ghosh. Thank you so much. So guys, these are today's readings. Basically मैंने 10 subscribers की list बनाई थी, but I have done readings for 8 subscribers जिन्होंने मुझसे लाइफ पर्पस रीडिंग्स की रिक्वेस्ट की थी। जो लास्ट के 2 सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम नॉट डूइंग देयर रीडिंग्स एज ऑफ नाउ बिकॉज जब मेरी उनसे बात हुई तो आई फेल्ट लाइक दैट दे शुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन टू देयर लाइफ पर्पस, and they both very well know that I do these readings, but as of now they haven't requested these readings for themselves. So I can't create karma by forcing them to do these purpose or something like that. So I feel I should not move ahead with these 2 readings. Once these subscribers will request me for the readings, I'll definitely do it for them. But maybe it's not the right time now. So I'm packing it up now, and I hope you all have understood your purpose. Uh, जितना भी मैं अफोर्ड कर सकती थी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव ट्राइड इट, कि मैं आपको बेस्ट वे में समझा सकूं, एंड so that you'll be able to move ahead with your purpose, because entire earth needs us now, and entire humanity is in the need of justice and assistance of light workers. Life workers मेरे मुंह से निकल रहा है, but indeed the light workers are supposed to work as life workers now, because things are like that, and we all do understand what's going on in the environment overall, right? So पर्पस में भी रीडिंग्स में भी यही आया कि a lot of people are in the need of help, are in the need of justice somewhere, and light workers and spiritual workers are supposed to reach them now. We all are supposed to heal them now, and this is the time to support them, because justice needs to be solved finally. बट बहुत सारे केसेस में लोग जब सामने नहीं आते हैं, गलत चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर अनअवेयर, एंड in some of the cases they lack confidence, they lack knowledge, they lack resources, they lack a right stable state of mind. So in those cases we have to take the initiative now, so that we'll be able to provide them the information, the guidelines, the solutions, the healings, and a proper platform, so that justice can be served, right? So that's it for now, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Good night.